Hello everyone, welcome to your YouTube channel Defense Mania. I am Riyasha, Biology faculty at Defense Mania app, and today I am going to tell you top 25 questions of biology and some very important points. Okay, so as we all know that CDS 1 2021 is very near. Hardly we are having 10 days. On 7th Feb we are having our examination, right? So today I will tell you few very important topics from biology that you can cover within this 10 days, and you can boost up your score in your GS section of the paper. Okay, so these are few important topics. If you do these questions at very last moment also, so you will be able to attend most of the questions of the biology section. So let's see the important topics of the biology, right? So yeah, these are few of the important topics that I have listed. So you can see the first topic is your biological classification. So in the biological classification, we have different phylums. Okay, so you should know all the kingdoms and their examples. From there, the very important thing is you should know all the examples. Okay, be it animal kingdom, be it plant kingdom, be it any phylum. Because in CDS, the question comes from the examples only. They will give you few examples and then they will ask you question. So from this topic, you should all remember all the kinds of example that are coming in the examination. Okay. The second important topic is your cells and tissues. Every year in the CDS examination, many क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस पार्ट विच इज योर सेल्स. ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से, लाइक लाइसोसोम्स, और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, लाइक दे विल आस्क यू विच इज द कमांड सेंटर ऑफ द सेल्स एंड देन दे विल आस्क यू सुसाइडल बैग. ठीक है, तो इस वाले पार्ट से दो तीन क्वेश्चन शॉर्ट आते ही आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज योर वाइटामिन एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस. ये टॉपिक काफी इजी है. ठीक है, और ये आप करके जाओ बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का आता है. एंड द थिंग इज that from this part you just need to remember a chart. ठीक है, और इस चार्ट को एक बार आप पढ़ लोगे then you're through with these type of questions. Next is your diseases and its causing organism. So सीडीएस में आपने जिन लोगों ने काफी बार अटेम्प्ट किया होगा, दे मस्ट बी नोइंग दैट डिजीजेस पार्ट से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं. दे आस्क यू कि हाँ ये वाले डिजीजेस लाइक क्या कॉज करता है, कौन सा प्रोटोजोआ है या फिर बैक्टीरियल डिजीज है, वेदर इट इज अ वायरल डिजीज. ठीक है, सो डायरेक्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक ऑल्सो. Next, talking about the plants. So in plants, the reproduction part and the modification, ठीक है, whether it is modification of stem, root, वो जो examples हैं, they are very important from serious point of view. ठीक है, and when we are talking about ecology, as you know that right now we are very much concerned about our environment and ecology. Okay, हम देख रहे हैं कि हाँ like environment में कितने सारे issues है. Climate change is also a major issues. So फ्रॉम दिस पार्ट व्हाट हैपेंस इज लाइक जो भी आपका करंट अफेयर में जो भी आपका कन्वेंशन या कुछ भी अगर हुआ हुआ रहता है, जैसे सीओपी चल रहा होता है. ठीक है, सो फ्रॉम दिस पार्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम. ठीक है, कोई प्रोटोकॉल अगर हुआ हुआ है या जो भी, तो आपके करंट अफेयर से लिंक करके दे आस्क यू कि वेदर दिस प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ एनवायरमेंटल इशू. ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगेन फ्रॉम इवोल्यूशन अगर हम बात करें तो होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ओके फाइन दिस इज द होमोलोगस ऑर्गन, ये एनालोगस ऑर्गन है, तो वहां पे यू नीड टू नो इट्स एग्जाम्पल. ठीक है, तो दो तीन चीजें यहाँ पे ऐसी जिसके आपको एग्जाम्पल्स हमेशा ध्यान में रखने हैं. ओके, नाउ एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि today we are gonna do the top 25 questions from biology, right? So moving further to the questions, and yes, ये जो पूरा टॉपिक आई एम कवरिंग हियर यू विल गेट द पीडीएफ ऑन द डिफेंस मेनिया ऐप ओनली. ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अगर यहाँ पे कोई भी इंसान है हु नीड्स द पीडीएफ, so you can easily download the Defense Mania app from the Play Store, and yes, from on the Defense Mania app you will easily get the PDF free of cost. And also there is a new feature that all the people who are downloading the Defense Mania app, they are getting added to the group, and there all the information and everything is available free of cost. ठीक है, तो आप वहां पे जाके देख लेना, इसकी पूरी PDF आपको वहीं पे मिल जाएगी. Okay, so the first question is
which of the organelles in the cell other than nucleus contains DNA? ठीक है, so all of you must be aware that हमारे cells में DNA होते हैं and सबको ये पता है कि DNA कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में होता है, राइट? बट बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि न्यूक्लियस के अलावा भी डीएनए प्रेजेंट होता है कुछ ऑर्गेनल्स में, ठीक है? तो अब वो कौन से ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है? तो इधर पे यूपीएससी आपको क्वेश्चन थ्रो कर देती है। ओके, सो द ऑप्शंस आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब क्या है? दीज आर योर सेल ऑर्गेनल्स, सो योर आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल which also contains DNA apart from nucleus, ठीक है? तो चलो ये तो हो गया आपके एनिमल्स के केस में और प्लांट्स के केस में, दोनों में। बट यहाँ पे इन 4 ऑप्शंस में यू कुड हैव आल्सो गॉट लाइक इंस्टेड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड भी दिया रह सकता था, ठीक है? सो प्लास्टिड इज आल्सो अ ऑर्गेनल which is only found in plants, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मिलता है and it also contains what? DNA, ठीक है? तो इस पार्ट से आपको 2 चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर अदर ऑर्गेनल्स व्हिच कंटेन्स डीएनए अदर देन न्यूक्लियस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो क्वेश्चन है, दिस इज द मैच द फॉलोइंग कॉलम, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं बायोलॉजी सेक्शन में, आपने देखा होगा। तो हियर द क्वेश्चन इज ऑन सेल ऑर्गेनल एंड दी ऑर्गेनल जो डिस्कवर किसने किया है, ठीक है? साइंटिस्ट के क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं सीडीएस में, तो यू शुड नो कि कुछ कुछ साइंटिस्ट के नाम, यू शुड बी अवेयर ऑफ देम, ठीक है? कि हाँ, इस ऑर्गेनल को इस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। सो इन कॉलम 1 यू आर हैविंग ऑल द सेल ऑर्गेनल्स एंड इन द कॉलम 2 यू आर हैविंग योर डिस्कवरर्स, ओके? सो the option A is your nucleus, हाँ, तो nucleus was discovered by whom? Robert Browne. and B is your ribosomes, ribosomes किसने डिस्कवर किया था? जॉर्ज ई पैलेड, ठीक है? यहाँ पे जॉर्ज पैलेड लिखा है, जॉर्ज ई पैलेड, ओके? योर लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स के लिए एक और चीज मैं बता दूं, लाइसोसोम्स इज आल्सो नोन एज योर सुसाइडल बैग्स, ठीक है? तो योर लाइसोसोम्स वाज डिस्कवर्ड बाय योर क्रिश्चियन डी डुवे एंड plastids, as I've already mentioned in the last slide, plastid is the organelle which is only found in plants and it was discovered by your Ernst Haeckel, ठीक है? E. Haeckel और Ernst Haeckel, ठीक है? तो as you can see, ये जो आपका ऑप्शन डी है, A का 2, B का 4, C का 1 and D का 3, this is right. So this is your correct answer, ठीक है? इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कौन सी ऑर्गेनल किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। So, moving on to your question number 3, which of the organelles is the smallest membrane-bound organelle? ठीक है? तो उसमें से कौन सा organelle ऐसा है जो smallest membrane-bound organelles है? So, you must be knowing that हमारे जितने भी organelles हैं, they are of 2 kinds, ठीक है? हम divide कर सकते हैं, some are membrane-bound and some are non-membrane-bound, ठीक है? तो membrane-bound हमारे organelles कौन-कौन से हैं? जैसे डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स भी हैं कुछ कुछ, ठीक है? तो इधर पे इन्होंने पूछा है आपसे कि स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, सो योर आंसर विल बी लाइसोसोम्स, ठीक है? लाइसोसोम्स इज योर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल व्हिच इज मेम्ब्रेन बाउंड। अगेन हियर टाइप टू काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी कि आपका कौन सा ऑर्गेनल, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल, द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, ठीक है? मेम्ब्रेन बाउंड वाउंड कुछ नहीं लिखा रहेगा, दे विल जस्ट आस्क यू स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल। तो अगर वैसा क्वेश्चन रहेगा, सो योर आंसर विल बी राइबोसोम्स। तो बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ने डिमांड क्या किया है, ठीक है? आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, पहले आपको क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है मैंने आपको राइबोसोम्स और लाइसोसोम दोनों बता दिया, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। नहीं, यू जस्ट हैव टू फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस अच्छे से, ठीक है? You should know कि what is the demand of the question first, ठीक है? Only after that you need to answer the question, ठीक है? So smallest membrane bound organelle is your lysosomes and smallest organelle is your ribosomes, okay? So yeah, moving on to your next question, which is your question number 4. Yes, so your question number 4 is the theory of सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज गिवन बाय। तो ये जो थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो किसने दी थी? योर ऑप्शन ए इज लेमार्क, बी मेंडल, सी चार्ल्स डार्विन एंड डी कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है?
तो आपको इन साइंटिस्ट के वर्क पता है? नहीं। लमार्क ने क्या दिया था? लमार्क ने लमार्किज्म दिया था, ठीक है। मेंडल, मेंडल की क्या स्पेशलिटी है? मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, राइट। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया था, एंड यस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था। सो योर आंसर टू दिस इज चार्ल्स डार्विन। एंड या इधर एक और साइंटिस्ट का नाम दे रखा है, कार्ल लैंडस्टीनर, तो इसने हमारी ब्लड ग्रुप को दिया था, ठीक है। सो यू शुड नो कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन कुड हैव बीन आस्क्ड टू यू इन द अदर वे ऑल्सो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि साइंटिस्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो कि किस साइंटिस्ट ने कौन सा टर्म दिया है, कौन सी थ्योरी दी है। डायरेक्टली क्वेश्चन साइंटिस्ट के ऊपर सीरियस में पूछे जाते हैं। ओके, so now moving on to your next question, which is your question number 5. Okay, so the question is, which one of the following is an example of vestigial organ? ठीक है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है किसका? वेस्टिजियल ऑर्गन का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो यही नहीं पता होगा कि वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या है, राइट। सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वेस्टिजियल ऑर्गन्स means those organs which are basically which were present earlier, जिसका पहले यूज था, बट नाउ विद द एवोल्यूशन देयर इज नो यूज ऑफ दीज ऑर्गन्स, ठीक है। अब इन ऑर्गन्स का कोई यूज नहीं है हमारे पास, बट स्टिल दे आर प्रेजेंट इन योर बॉडी, अभी भी वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। सो द वेरी बहुत कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास है विच इज योर अपेंडिक्स, राइट। आपने देखा होगा कि लोगों को लाइक हमारे बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन के पास यू आर हैविंग योर अपेंडिक्स, बट डाइजेशन में अगर आपने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी तो कहीं यूज है उसका? नहीं है, राइट। बट स्टिल वी आर हैविंग इट, दैट इज योर एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। इसीलिए जब लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है अपेंडिक्स में तो डॉक्टर इजीली बोल देता है कि जस्ट रिमूव इट बिकॉज इट इज हैविंग नो यूज इन आवर बॉडी, ओके। So yeah, here your options are jaw apparatus. So jaw apparatus आपका क्या यूज हो रहा है, right? Jaw apparatus you are using for eating food and everything, ठीक है। Ear muscles, तो ये यही है आपका vestigial organ का example, which is a vestigial organ which is not in use, ठीक है। Canine teeth, yes, all of us are using our canine teeth, ठीक है, especially जो non vegetarians है, क्योंकि canine teeth का function क्या है? Tearing of food, right? ह्यूमरस, ह्यूमरस इज द नेम ऑफ योर बोन, ठीक है। ये आपके हाथों में जो बोन है उसका नाम है ह्यूमरस। सो यू आर यूजिंग योर हैंड्स, राइट, दिस बोन इज यूज्ड, सो दिस कैन नॉट बी योर वेस्टिजियल ऑर्गन। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, which is your ear muscles, ठीक है। Okay, so moving on to question number 6, which is the fossil of Archaeopteryx represents the evidence of origin of, ठीक है। तो इसके आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बर्ड्स फ्रॉम रेप्टाइल्स, ऑप्शन बी मैमल्स फ्रॉम रेप्टाइल्स, ऑप्शन सी रेप्टाइल्स फ्रॉम एम्फिबियंस, ऑप्शन डी मैमल्स फ्रॉम बर्ड्स। सो यू कैन सी यहाँ पे आपके सारे वर्टिब्रेट्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, और जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स के क्लास हैं इट्स बीन गिवन हियर, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि हाँ आर्चियोपेट्रिक्स क्या है। आर्चियोपेट्रिक्स वाज अ एनिमल, ठीक है, जिसके पास जो फीचर्स थे इट वाज सिमिलर टू बोथ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट और फॉसिल फ्रॉम बर्ड्स टू रेप्टाइल्स, ठीक है। एवोल्यूशन शो करता है कि हाँ बर्ड्स बने, कहाँ से बने? फ्रॉम रेप्टाइल्स, ठीक है। बिकॉज वर्टिब्रेट्स में क्लास कैसे होते हैं? फर्स्ट इज योर पाइसेस विच कंटेन्स योर ऑल ऑफ योर फिशेस, ठीक है, आपके पास सारे फिशेस आते हैं, देन योर एम्फिबियंस, देन योर रेप्टाइल्स, देन योर बर्ड्स एंड देन मैमल्स, ठीक है। तो एवोल्यूशन इसी तरह से हुआ है फ्रॉम वाटर टू लैंड, ठीक है। सो birds from reptiles is your correct answer, ठीक है। Archaeopteryx was a fossil, it is known as a living fossil, ठीक है, fossil भी नहीं बोलोगे, it was known as your living fossil. Okay, so moving on to your 7th question. Which among the following is the genetic name of the causal organism of elephantiasis? See, this is a question from diseases. Also, elephantiasis is a disease, ठीक है। elephantiasis as the name only suggest कि इसमें जो आपकी बॉडी होती है
इसमें योर बॉडी बिकम्स जायंट लाइक एलिफेंट, ठीक है, आपकी लिम्फेटिक सिस्टम जो है पूरा स्वेल हो जाता है, उसमें फ्लूइड्स फिल हो जाते हैं। ओके, नाउ इधर पे जो यूपीएससी है आपको ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग देती है, ठीक है। हियर ऑल्सो ऑप्शन ए, बी एंड सी, ऑल ऑफ द थ्री आर रिलेटेड टू द डिजीज एलिफेंटियासिस ओनली, ठीक है। आई विल टेल यू हाउ। जो आपका फाइलेरिया है, फाइलेरिया इज द नेम ऑफ द डिजीज, जो आपका डिजीज है उसका ही नाम फाइलेरिया है। फाइलेरिया एंड एलिफेंटियासिस इज द सेम थिंग, ठीक है। यू कैन कॉल दिस डिजीज एज फाइलेरिया ऑल्सो एंड योर एलिफेंटियासिस ऑल्सो, ठीक है। माइक्रोफिलेरिया जो ऑप्शन नंबर बी है, दिस इज योर लार्वे ऑफ द कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड योर ऑप्शन सी इज द name of the causal organism, or I would rather say genetic name of the causal organism, which is Wuchereria bancrofti, ठीक है। नाउ आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, बच्चों ने पढ़ा होगा कि हाँ एलिफेंटियासिस है, फाइलेरिया कहीं पढ़ा था, उसी में हमने माइक्रोफाइलेरिया पढ़ा था, बट अगेन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जेनेटिक नेम ऑफ द कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक नेम क्या है, वुचरेरिया bancrofti, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। So we'll move to the next question, which is your question number 8. Yeah. So match the following columns. ठीक है. Column number 1 में the name of the animal is given. Column number 2 में name of the phyla is given. Okay. So A is your Ascaris. Ascaris is the animal. ये कौन से phylum को belong करता है? It belongs to your phylum Nematoda. ठीक है। ऑप्शन बी इज मलेरियल पैरासाइट। तो मलेरियल पैरासाइट, ओके, मलेरियल पैरासाइट का नाम क्या है, ठीक है, तो ये आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आई वांट टू नो द नेम ऑफ द मलेरियल पैरासाइट फ्रॉम यू गाइस, ठीक है, बिकॉज हियर यहाँ पे इन्होंने आपको मलेरियल पैरासाइट लिख दिया है, बट यहाँ पे ये पैरासाइट का नाम भी लिख के दे सकते हैं आपको, ठीक है। सो यू शुड नो कि मलेरियल पैरासाइट कौन सी है। तो दिस बिलोंग्स टू योर फाइलम प्रोटोजोआ। हाँ, मलेरियल पैरासाइट का भी बताओगे नाम, एंड अगेन वुचरेरिया bancrofti कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, यू विल टेल मी दिस ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई हमारे जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, दे बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो हाउस फ्लाई विल बिलोंग टू योर फाइलम आर्थ्रोपोडा। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग काउ। काउ किसको बिलोंग करता है, मैमेलिया, ठीक है। सो ऑप्शन ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। तो आपको क्या बताना है, मेरे को मलेरियल पैरासाइट बताना है और वुचरेरिया bancrofti का फाइलम बताना है। दोनों ही आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। कुछ होमवर्क भी कर लो। ओके, सो योर 9th क्वेश्चन इज which one among the following pairs is not correctly matched, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या बोला इन्होंने, not correctly matched, ठीक है। तो इसमें से 3 जो है वो करेक्टली मैच्ड होंगे और 1 गलत होगा। लेट्स सी, सैंडलवुड प्लांट, ओके, पार्शियल रूट पैरासाइट, ठीक है। सैंडलवुड प्लांट जो होता है, जो चंदन का पेड़ होता है, उसमें पार्शियल रूट पैरासाइट्स लगते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग कस्क्यूटा। हाँ, हमने बचपन से पढ़ा है 7th-8th क्लास से कि कस्क्यूटा इज अ पैरासाइटिक प्लांट, राइट। Nepenthes is an animal which is carnivorous, ठीक है, carnivorous है। एंड मशरूम सबको पता है कि मशरूम क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ फंजाई, और फंजाई हमारे क्या होते हैं, दे आर हेट्रोट्रोफ्स, और यहाँ पे क्या लिखा है, ऑटोट्रोफ, मीन्स दिस इज रॉन्ग, राइट। तो योर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। द एंटी-मलेरियल ड्रग क्विनीन इज मेड फ्रॉम अ प्लांट, द प्लांट इज। सो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे डाला है मैंने, अभी एज यू नो कि कोविड का टाइम था एंड वी हैव बीन यूजिंग द ड्रग क्लोरोक्विनीन, ठीक है। तो वहां से द क्वेश्चन कैन बी लिंक्ड विद द करंट अफेयर्स एंड आपकी अवेयरनेस देखी जा सकती है, ठीक है। सो यू शुड नो कि हाँ हमें ये ड्रग कहाँ से मिलता है, कौन से पेड़ से मिलता है, ठीक है। वी हैव बीन सप्लाइंग दिस ड्रग टू यू नो अदर कंट्रीज ऑल्सो, ठीक है। वी हैड गिवन अ हेल्पिंग हैंड टू अदर कंट्रीज ऑल्सो बाई यू नो हेल्प गिविंग दिस ड्रग, ठीक है। तो यू शुड नो कि ये ड्रग हम कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो योर ऑप्शंस आर नीम, यूकैलिप्टस,
cinnamon and cinchona. So your answer is चिंचोना. यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग कि चिंचोना के भी हम कौन से पार्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं ये ड्रग? फ्रॉम इट्स बार्क. ठीक है, इसके बार्क से हमें ये ड्रग मिलता है. ठीक है, तो वहां पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट से हम वी गेट दिस ड्रग क्विनीन. ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर वी गेट द ड्रग क्विनीन फ्रॉम द चिंचोना प्लांट एंड फ्रॉम इट्स बार्क. ठीक है, या so okay, I would like to tell you all that yes, this is your CDS 2021 exam ka course which is available on Defense Mania app and it is available at very nominal and very pocket friendly prices. ठीक है, so if you like this whole video and the biology lectures, I have taken all the lectures on all the topics. You can see I have taken complete lectures on biological classification, plant kingdom, animal kingdom pe. All the videos are present in the content of CDS 2021 exam. ठीक है, so even if now anyone wants to revise it quickly, everything is available on the app. You can easily enroll and use the things. ठीक है, so check it on the app and yeah, you will get all the videos. Special feature of the video is that at the end of the videos you will be getting the previous year questions. ठीक है, I have discussed all the previous year questions at end of the each of the videos. ठीक है, और एक एडवांटेज ये है कि हाँ, अभी आप सोच रहे होगे आपको क्या मिलेगा एनरोल करके इस कोर्स में, राइट? बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि अभी 10 दिन बचे हैं CDS के. ठीक है, और यहाँ से अगर आप क्विकली इन चीजों को रिवाइज कर लोगे तो दैट विल बी अ बेनिफिट फॉर यू फॉर दिस CDS एग्जाम. एंड एज यू कैन ऑल सी कि ये जो पूरा कोर्स है इट इज वैलिड टिल 26 नवंबर 2021, राइट? सो होगा बेसिकली क्या, आपको इस CDS के लिए रिविजन मिल जाएगा एंड नेक्स्ट CDS के लिए यू कैन कंप्लीटली प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट CDS. ठीक है, सो without wasting any more time, let's move to our next question. Yeah, so the question number 11. The ultimate cause of water movement in a plant stem against gravity is. So as you all know, जो gravitation pull है, it pulls us towards the earth, right? Still, plant is able to move its water away from the gravitation pull, towards upward towards the leaf. ठीक है, water तो हम roots को डालते हैं, but still water is going to the leaves against the gravitational pull. How is it possible? ठीक है, तो यहाँ पे your options are osmosis, transpiration, photosynthesis and diffusion. सारे processes के नाम लिख दिए हैं confuse करने के लिए, but हमें confuse नहीं होना है, right? So your right answer is transpiration. ठीक है, transpiration कहाँ से होता है? Stomata से होता है. Okay, and that causes your transpiration pull, and because of that pull only your water gets absorbed upwards. ठीक है, इसी pull की वजह से आपका water जो है upwards pull हो जाता है towards the leaf where water is required for the purpose of photosynthesis. Yeah, moving on to the next question. Question number 12. Stockholm Convention is aimed at protecting human health and environment against adverse effects of which of the following? ठीक है, तो Stockholm Convention किसके लिए है? Stockholm Convention is basically for persistent organic pollutants, which is also known as your POPs. POPs क्या होते हैं? POPs are nothing but these are those pollutants which are not able to degrade in the environment. ठीक है, आपको पता ही है. तो ये जो pollutants है ये डिग्रेड नहीं होते बहुत टाइम तक एंड अल्टीमेटली इट इज कॉजिंग हार्म टू आवर हेल्थ ऑल्सो एंड टू द एनवायरमेंट ऑल्सो. और जितने भी हमारे एनिमल्स प्रेजेंट है एनवायरमेंट में सबको दे आर हार्मिंग. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ओके, ऑप्शन नंबर ए में हजार्डियस वेस्ट भी है. तो जो हजार्डियस वेस्ट से रिलेटेड जो कन्वेंशन है उसका नाम है बसेल कन्वेंशन. ठीक है, ये जितने भी कन्वेंशंस हैं और हर चीज है, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन द लेक्चर्स. ठीक है, जो वीडियो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं डिफेंस मेनिया ऐप पे CDS कोर्स के लिए, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड देयर कंप्लीटली. सब कुछ आपको वहां पे बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा. सो यू कैन इजीली एनरोल और आपको मतलब you will be getting everything there with the previous year questions and practice questions. So अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है. ठीक है, अभी भी you can prepare your best and go for the examination. ठीक है,
Okay, moving on to the second question, 13th question. Your 13th question is, which of the following statements regarding potato is true? तो कौन सा statement true है? हमें पता है potato हो गया, then we are having ginger, turmeric, and your sweet potato, then garlic. These are all your radish, carrot. ये सब क्या है basically? They are found from underground, right? तो you all should know कि कौन सा जो turnip है या फिर radish है या फिर carrot है, this is modification of what? Basically these are modification of some sort of a thing, right? Be it root, be it stem, be it leaves. So you should know कि कौन सी चीज किस चीज की modification है, and modification क्यों होती है? Modification happens so that the plant can store food in these parts. ठीक है, सो पोटैटो में भी प्लांट क्या करता है? बेसिकली अपना फूड स्टोर करता है, एंड पोटैटो इज योर मॉडिफाइड स्टेम, दो इट इज फाउंड अंडरग्राउंड. बट यही तो कंफ्यूजन है, बच्चों को लगता है कि मतलब अगर अंडरग्राउंड चीजें मिल रही है तो दे आर ऑल रूट्स, बट यू शुड नो कि नहीं, पोटैटो क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम है. फिर अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जिंजर की, तो हमारा जिंजर भी मॉडिफाइड स्टेम है. देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट radish और carrot, so वो क्या है? They are modified roots. Yes, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि potato is your modified stem, ठीक है, but आपका जो sweet potato है it is your modified root. तो यहाँ पे you should know all the differences कि कौन सा modified stem है, कौन सा modified root है. Just because they are growing underground, that doesn't mean कि they are your modified roots. ठीक है, you should know the difference. So potato is your modified stem. Moving to the next question. Yeah. So your next question is, wavelengths of which of the following color of the visible spectrum of light are maximally absorbed by green plants? तो ग्रीन प्लांट्स मैक्सिमली कौन से कलर की लाइट अब्सॉर्ब करती है? तो ग्रीन प्लांट्स, अगर यहाँ पे सिंगल ऑप्शंस होते तो ग्रीन प्लांट मैक्सिमली अब्सॉर्ब्स दी रेड लाइट. ठीक है, एंड हियर इट विल बी रेड एंड ब्लू, क्योंकि रेड और ब्लू दोनों को ही अब्सॉर्ब करती है. बट अगर हाँ सिंगली पूछा है तो it absorbs maximally red light, and yes, it reflects what? Green light, because of which we see the color of leaves as green color. ठीक है, क्लोरोफिल का भी रोल है और उसके रिफ्लेक्शन का भी रोल है. ठीक है, तो your answer here will be red and blue light. ठीक है, क्योंकि we are having all 7 colors of light in the visible spectrum, उसमें से you should know कि red और blue light ही है, which is the light which is mostly absorbed by the plants. हम तो plants is basically taking what? Sunlight. Sunlight में तो सारी lights present है, all the 7 lights are present, right? But okay, moving on to the next question. Yes, question number 15. The blood does not coagulate inside the body due to the presence of, yeah, we have seen that after, like when we get any injury or anything, our blood starts clotting, right? Coagulate होने लगता है. But the same blood is moving inside our whole circulatory system. Why is it not coagulating? Because of certain factors. ठीक है, तो option A is your hemoglobin. Yes, hemoglobin is present inside your blood. Okay, option B is heparin, option C fibrin, option D plasma. तो ये सारी चीजें हमारे ब्लड में प्रेजेंट है. बट what is that thing which does not allow our blood to coagulate? So your answer is option B, which is heparin. ठीक है, heparin is that factor which does not allow the coagulation of blood while flowing. Okay, so question number 16. Match the following columns. ठीक है, as I already mentioned कि vitamin and diseases are very important, so I have put a question on that also. ठीक है, so in column 1 you are having all your vitamins, in column 2 you are having the chemical names of the vitamins. ठीक है, so option the A is vitamin A. ठीक है, अब vitamin A का chemical name क्या है? ठीक है, तो vitamin A का chemical name is retinol. Okay, vitamin A is chemically known as retinol. Vitamin B1 is chemically known as what? Thiamine. Then you are having your vitamin C. Vitamin C is chemically known as ascorbic acid. And vitamin E is known as tocopherol. इसके लिए कुछ नहीं करना है,
विटामिन्स का चार्ट देख लेना है, उसके केमिकल्स नेम देख के जाने हैं, ठीक है। सो योर ऑप्शन डी, ए का 2, बी का 1, 3, 4, इसमें से अगर आपको 3-4 भी आते होंगे ना तो यू कैन इजीली मार्क, ठीक है। तो ट्राई करो कि एक बार आप चार्ट देख लो, थोड़ा ध्यान में रखो। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस है, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। विटामिन का केमिकल नेम और उसके डिजीजेस, तो क्यों नहीं हम देख के जाए, व्हेन वी आर नोइंग कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा तो एक नंबर अपने श्योर करके जाओ ना, ठीक है। तो इस पार्ट को कंप्लीट करके जाओ। ओके, 17th क्वेश्चन, व्हाइट ब्लड सेल्स एक्ट एज, ठीक है। तो हमारे ब्लड में कितने टाइप के सेल्स हैं, वी आर हैविंग द आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, योर रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, ठीक है। white blood cells your WBCs and your platelets which is also known as your thrombocytes, ठीक है। और इनकी साइंटिफिक नेम, आरबीसीज को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स एंड या प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो आरबीसीज है बेसिकली, उसका फंक्शन क्या है, इट्स बेसिक फंक्शन इज टू कैरी ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। देन यू आर हैविंग योर डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसीज का जो फंक्शन है इट इज बेसिकली टू प्रोटेक्ट योर बॉडी अगेंस्ट एनीथिंग, कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, डब्ल्यूबीसी अपनी आर्मी लेके वहां खड़ी हो जाएगी कि भाई तुम भागो। तो जो डिफेंस का जो काम है वो किसका है, वो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे योर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस। एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नो इट इज गलत। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में होता थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होता। और ऑप्शन डी में क्या दिया है, एज अ मीडियम ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, ठीक है। ये भी फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन किसका है, रेड ब्लड सेल्स का या फिर इरिथ्रोसाइट्स का, ठीक है। Okay, question number 18. See, this is again a question on vitamins, ठीक है। और vitamin को you have to match with its deficiency disease. Okay, यहाँ पे you have been given 4 vitamins and 5 diseases. चलो, बहुत easy है इसमें, ठीक है। I have already taught my children कि हाँ कैसे वाइटामिन्स और डिजीजेस को आप बिना मतलब ज्यादा भी ध्यान रखे बिना भी आप समझ के किस तरह से उसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इट इज अ मिथ कि बायोलॉजी को रट्टा मारना पड़ता है, ठीक है। बायोलॉजी कैन बी अंडरस्टूड इजीली और आप चीजों को वर्ड को ब्रेक करके समझ के भी पढ़ सकते हो काफी आसान तरीके से। आई विल टेल यू हाउ, ठीक है, थोड़ा सा बताते हो। चलो देखते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसका डायरेक्ट है कि विटामिन सी अगर आप प्रॉपरली नहीं लोगे तो इट विल कॉज यू अ डिजीज विच इज स्कर्वी। विटामिन ए को कैसे याद रख सकते हो, विटामिन ए को हमने क्या बताया था, इट इज नोन एज, इट्स केमिकल नेम इज व्हाट, अभी हमने पढ़ा था, इट्स केमिकल नेम इज रेटिनॉल, राइट। सो उसका केमिकल नेम रेटिनॉल है। तो रेटिनॉल को ब्रेक करो, अब रेटिनॉल से आपको क्या समझ आ रहा है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू रेटिना, राइट। तो अब रेटिना से रिलेटेड है, रेटिना कहाँ है, इट इज प्रेजेंट इन योर आईज। इफ यू आर नॉट टेकिंग विटामिन ए प्रॉपरली तो आपकी रेटिना पे इफेक्ट पड़ेगा, और रेटिना पे इफेक्ट पड़ेगा तो आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा। आंखों की कौन सी डिजीज नजर आ रही है आपको यहाँ 5 में से, नाइट ब्लाइंडनेस। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन रिलेट इट एंड यू कैन इजिली आंसर द क्वेश्चंस एंड लर्न द चार्ट, ठीक है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपका कौन सा डिजीज कॉज होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट इज योर विटामिन डी। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ठीक है। तो विटामिन डी में कुछ टर्म आ रहा है कैल्शियम का, ओके। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारे जो डिजीजेस होंगे दैट विल बी सम रिलेटेड टू योर बोन्स, ओके। सो बोन से रिलेटेड आपके डिजीजेस होंगे। बोन से रिलेटेड यहाँ पे कौन सी डिजीज है, द डिजीज नेम इज रिकेट्स। रिकेट्स इज सम डिजीज विच इज रिलेटेड टू योर डिफॉर्मिटी ऑफ बोन्स। जिनको रिकेट्स होता है उनके बोन्स काफी डिफॉर्म्ड होते हैं। सो विटामिन डी का आंसर हो जाएगा रिकेट्स। विटामिन B12 से होता है आपका अनीमिया, परनिशियस अनीमिया, और ये जो जितने भी आपके अनीमिया है ये आपके विटामिन B12 और B9 की वजह से होते हैं। तो विटामिन B9 की वजह से परनिशियस अनीमिया इज कॉज्ड, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया कॉज होता है, ओके। तो यहाँ पे B12 है और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा अनीमिया है। सो जस्ट
जो डी का है इट विल बी 4. एंड द फिफ्थ डिजीज इज बेरी. तो योर बेरी इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन B1. ठीक है. अब when we are talking about the vitamins, so हमारा जो विटामिन बी है इट इज नॉट अलोन, उसके बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स नहीं, लाइक इट इज अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स. ओके, सो उसमें यू आर हैविंग B1, B2, B5, B6, B7, B9, B12. तो आपको सबके याद रखने पड़ेंगे. अगेन विटामिन वाले पार्ट में विटामिन यहीं पे खत्म नहीं होता है. विटामिन आर ऑल्सो कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 काइंड ऑफ सब ग्रुप्स. ठीक है. अब किस टाइप के सब ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं दैट यू विल टेल मी कि हाँ कैसे डिवाइड होते हैं. ठीक है. आई विल गिव यू अ हिंट कि vitamins are of two types, fat soluble and water soluble. Now in the comment section you tell me कि water soluble vitamins कौन से हैं और fat soluble कौन से हैं. ठीक है. This is your homework. So यहाँ पर the answer to this question is option number D. A का 2, B का 1 and C का 3 और D का 4. ठीक है. Now we'll move to the next question. Okay, so your next question is insects that can transmit diseases to humans are referred to as. ठीक है. जो इंसेक्ट्स आपके डिजीजेस ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमंस को, देर आर मेनी इंसेक्ट्स जिससे हमें डिजीज मिलती है. ठीक है. जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया. कैसे होता है? मच्छर के काटने से होता है. तो उस मच्छर को हम क्या बोलेंगे? ठीक है. ऑप्शन ए इज कैरियर्स, वेक्टर्स, रिजर्वॉयर्स एंड इंक्यूबेटर्स. सो दीज जो मस्कीटो, इनको जो भी हमारे मस्कीटोज हैं इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज वेक्टर्स. क्यों बोलते हैं वेक्टर्स? बिकॉज दे आर दी कैरियर्स ऑफ द डिजीज. ठीक है. वो डिजीज को कैरी कर रहे हैं हमारे पास. ठीक है. तो दे आर नोन एज व्हाट? वेक्टर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 20. Amnesia is related to option A sleeping sickness, option B loss of sight, option C loss of hearing and option D loss of memory. तो amnesia is what? Loss of memory. ठीक है. amnesia is a word which is related to your loss of memory. जिनकी मेमोरी चली जाती है we call them कि उन्हें amnesia हो गया. या फिर there are certain diseases जिसमें कि मेमोरी शॉर्ट टाइम के लिए जाती है तो उन्हें भी हम amnestic ही बोलते हैं. ओके, so we'll move to the next question. Yeah, क्वेश्चन नंबर 21. सी अभी हम बात कर रहे थे वेक्टर्स की और ये क्वेश्चन पूरा वेक्टर्स पे ही है. ठीक है. एजेंट्स ऑफ, सो इन कॉलम नंबर 1 योर एजेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन इज गिवन एंड इन योर कॉलम नंबर 2 डिजीज विच इज कॉज्ड इज गिवन. ठीक है. तो ए में यू आर हैविंग एनोफिलीज मस्कीटो. बहुत सुना होगा कि फीमेल एनोफिलीज जो है इट कैरीज द मलेरियल पैरासाइट विच इज योर प्लाज्मोडियम. ठीक है. जो आपका क्या कॉज करता है? मलेरिया. ओ माय गॉड, मैंने अभी आपको होमवर्क दिया था कि आपको मलेरियल पैरासाइट बताना है और मैंने प्लाज्मोडियम बता दिया. चलो अब बाकी सारी चीजें कर लेना. तो मलेरियल पैरासाइट का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम. ठीक है. तो फीमेल एनोफिलीज जो है वो क्या करती है? प्लाज्मोडियम जो आपका प्रोटोजोआ है उसको कैरी करती है हमारे बॉडी में एंड इट कॉजेस मलेरिया. तो फीमेल ये जो एनोफिलीज मस्कीटो है इट कॉज मलेरिया. देन क्यूलेक्स मस्कीटो, जो क्यूलेक्स मस्कीटो है इट इज द कैरियर ऑफ माइक्रोफिलारिया. जो हमने माइक्रोफिलारिया पढ़ा था जो लार्वे कैरी करती, किसका? वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई का. तो वो कौन सा डिजीज कॉज करती है? इट कॉजेज योर फाइलेरिया. ठीक है. डिजीज का नाम क्या है? एलिफेंटियासिस बोल लो या फाइलेरिया बोल लो, एक ही बात है. ठीक है. तो क्यूलेक्स मस्कीटो जो है आपके माइक्रोफिलारिया को कैरी करती है और इट कॉजेज योर डिजीज एलिफेंटियासिस और फाइलेरिया. एडीज, एडीज इजिप्टाई. ठीक है. एडीज इजिप्टाई या एडीज मस्कीटो, इट इज द मस्कीटो, इट इज अ वेक्टर फॉर योर डेंगू वायरस विच कॉजेज योर डेंगू. और एडीज जो है वो चिकनगुनिया का भी वेक्टर है. चिकनगुनिया और डेंगू दोनों के दोनों इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ योर एडीज मस्कीटो. ठीक है. देन वी आर हैविंग सैंड फ्लाई. सैंड फ्लाई अगेन इट इज अ इंसेक्ट. और ये जितने भी मस्कीटोज है किसको बिलोंग करते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा को. ठीक है. सो ये जो आपका सैंड फ्लाई है इट कॉज योर डिजीज काला अजर. काला अजर को हम ब्लैक फीवर भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि इन अर्लियर टाइम्स दिस डिजीज यूज्ड टू स्प्रेड एंड गांव के गांव, शहर के शहर सब खत्म हो जाते थे. दिस वाज लाइक बहुत क्रॉनिक डिजीज और बहुत ऐसे लंबा चलता था. ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज काला अजर या फिर इसे हम ब्लैक फीवर भी बोल देते हैं. ओके. तो सैंड फ्लाई इज द वेक्टर फॉर काला अजर. ऑप्शंस यू कैन सी. ठीक है. ऑप्शंस ऐसे आएंगे और इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी.
Okay, so question number 22. The genetically engineered golden rice is rich in which of the following? ठीक है, so जो हमारा GM crops हैं, तो the genetically engineered golden rice is rich in beta carotene and iron. Because it is rich in beta carotene, जो beta carotene है, it gives it a a light orangish color. ठीक है, because of which your rice is having a golden color. ठीक है, so that's why this rice is known as golden rice, and it has been prepared specially so that राइस के थ्रू ही हमें आयरन और कैरोटीन अच्छे से मिल जाए. ठीक है, बेसिकली राइस में क्या होता है, स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसको मॉडिफाई किया गया है ताकि कुछ वाइटामिन और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे अंदर राइस के थ्रू ही चला जाए. Okay, moving to the next question. It is your question number 23. Which of the following is present in the chlorophyll which gives a green color to the plant leaves? ठीक है, तो green color देता है आपके plant leaves को, तो chlorophyll is the pigment which gives the green color to the leaves. ठीक है, उस chlorophyll में कौन सा ion present होता है? ऑप्शन है कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, आयरन or manganese. So your answer is magnesium. Magnesium ion is present in your chlorophyll and it gives the green color to the plant leaves. ठीक है, leaves को यही this is the pigment which gives the green color to the plants, और इसमें ion कौन सा present होता है? Magnesium ion. ठीक है, just because we are talking about the ions here, ठीक है, तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले विटामिन B12 की बात की थी, तो जो हमारा विटामिन B12 है उसमें भी यू हैव अ आयन. ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स आई एम टेलिंग यू. सो इन योर विटामिन B12 योर कोबाल्ट आयन इज प्रेजेंट. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर क्लोरोफिल की बात की है, सो वी आर हैविंग मैग्नीशियम, और आयन के नाम पे अगेन अ क्वेश्चन कैन कम ऑन B12, विटामिन B12. तो विटामिन B12 में कोबाल्ट आयन विल बी प्रेजेंट. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is your question number 24. The abnormal rise in count of RBCs is called, so if your RBC count increases abnormally, it will be known as polycythemia. देखो इधर पे जितने भी आपके टर्म्स हैं ना, ये थोड़े खतरनाक हैं, आपको नहीं पता होंगे, बट मैंने कहा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ईजी. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम अपने जैसे आरबीसीज हैं, दे आर नोन एज योर इरिथ्रोसाइट्स, और जो हमारे WBCs हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स. और हमारे जो प्लेटलेट्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स. तो अब ऐसे अगर इस चीज को बस याद रख लोगे तो यहाँ यू कैन रिलेट कि जैसे हियर दे आर आस्किंग यू क्वेश्चन अबाउट आरबीसी. ठीक है, आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो इन चारों ऑप्शंस में से 3 को. ल्यूकेमिया, जब हम ल्यूकेमिया की बात करें इसमें ल्यूक वर्ड आ रहा है, राइट, और हमने बोला है कि हम WBCs को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, तो दिस इज रिलेटेड टू समथिंग टू योर WBCs. तो ल्यूकेमिया में क्या होता है, आपके WBCs का काउंट इंक्रीज हो जाता है, काफी ज्यादा, बहुत बढ़ जाता है. ठीक है, ल्यूकोपीनिया में WBC, इसमें भी ल्यूको वर्ड आ रहा है. ठीक है, तो ल्यूकोपीनिया में WBC का जो काउंट है इट विल डिक्रीज काफी ज्यादा. थ्रोम्बोसाइटोसिस में यू कैन सी थ्रोम्बोसाइट आ रहा है, तो अगेन दिस विल बी अ डिजीज विच विल बी रिलेटेड टू द थ्रोम्बोसाइट्स. तो इजीली आपके 3 ऑप्शंस हट गए एंड आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीसाइथीमिया. तो इसी तरह से अगर आप बायोलॉजी को पढ़ोगे ना, टर्म्स को लेके रिलेट करके, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है, और हमने इसी चीज को बहुत अच्छे से पूरे कोर्स में, पूरे कंटेंट के वीडियोस में बता रखा है कि टर्म्स को ब्रेक करके चीजों को कैसे रिलेट करना है. ठीक है, और कैसे उसको आंसर करना है. सो दिस इज द वे, दिस इज द क्रक्स. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. हाँ, this is the last question of today's video, question number 25. Here the question is match the following column. Column number 1 and column number 2. Column number 1 में we are having all your glands, and in column number 2 we are having your hormones. ठीक है, so column number 1 में जो A है that is your pancreas. ठीक है, तो if we are talking about the pancreas, pancreas is a gland. एक और चीज बताना चाहूंगी pancreas के बारे में. Pancreas is the gland which is having both the function, your endocrine as well as your exocrine function. ठीक है, यही एक ऐसा gland है जिसके दोनों ही functions हैं, तो you need to keep this in mind also. ठीक है, the question can also come in this way, like which of the following glands has both the function.
लाइक बोथ द फंक्शन, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। अभी यहाँ पे मैंने दो टर्म्स बोल दिए, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। नाउ इट्स योर वर्क कि आप एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का डिफरेंस पता करोगे कि क्या फर्क है दोनों में। व्हाई आई एम टेलिंग कि पैनक्रियाज हैज बोथ द फंक्शन। रेस्ट जितने भी ग्लैंड है उनका एंडोक्राइन फंक्शन है, ठीक है। ओके, पिट्यूटरी। ओके, पहली चीज, पैनक्रियाज किस हार्मोन से रिलेटेड है? पैनक्रियाज इज रिलेटेड टू योर ग्लूकागोन, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकागोन की जगह पे यू माइट हैव बीन गिवन इंसुलिन ऑल्सो, क्योंकि इंसुलिन भी पैनक्रियाज से रिलेटेड है। ओके, सो पैनक्रियाज इज अ gland which is associated with your glucagon, insulin like hormones. Pituitary, पिट्यूटरी के साथ आपके सारे स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स रिलेटेड होते हैं, ठीक है। TSH, LH, FSH, ठीक है। तो उन हॉर्मोन्स की एक ही है कि इफ दिस इज रिटन TSH तो इट माइट हैव बीन रिटन लाइक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जैसे आपको स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिखेगा तो यू कैन मेक इट आउट कि वो पिट्यूटरी से रिलेटेड है। या फिर आपको TSH की जगह FSH दे देते, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर आपको LH दे देते, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो यू कैन इजीली मेक इट आउट कि पिट्यूटरी रिलेटेड है। एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड्स के साथ योर कॉर्टिसोल इज रिलेटेड, ठीक है। कॉर्टिसोल इज अ हार्मोन विच इज एसोसिएटेड विद योर एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की क्या खास बात है? एड्रिनल ग्लैंड इज बेसिकली योर ग्लैंड जो कि विच इज एसोसिएटेड विद योर यू नो व्हेन वी से कि हाँ एड्रिनालिन रश हो गया, ये हो गया, तो कैसे होता है ये सब? इट इज रिलेटेड विद योर फ्लाइट, फ्राइट और फाइट वाले सिचुएशंस के साथ, ठीक है। और इसमें यू आर हैविंग योर कॉर्टिसोल्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वाले जितने भी हॉर्मोन्स हैं दे आर ऑल एसोसिएटेड विद योर एड्रिनल ग्लैंड्स। किडनीज के साथ योर विटामिन डी इज एसोसिएटेड, क्योंकि अगर किडनीज आपकी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी सो योर बॉडी विल नॉट अब्सॉर्ब विटामिन डी, ठीक है। सो योर ऑप्शन ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। सो इन दिस वे योर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड या, this was the end of the lecture. Okay, these were your top 25 questions of the biology. Thank you so much.